بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا کٹر وزیر مسجد اقصی کمپاؤنڈ میں آدھم کا، کہا دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، تناؤ میں کئی گنا اضافہ۔ فلسطینیوں نے اتمار بن گویر کے اقصی دورے کو چھیڑخانی قرار دیا۔ حماس نے کہا نتیجوں کے لیے اسرائیلی حکومت ذمہ دار ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شفیع نے فلسطینیوں سے کہا اقصی دھاووں کا مقابلہ کریں۔ OIC نے بھی کی بن گویر کے دورے کی مذمت۔ ڈونیٹسک میں یوکرین کا ہیمارس راکٹ سسٹم سے حملہ، 63 رشین سپاہی ہلاک۔ جنگ شروع ہونے کے بعد کی سب سے بڑی کارروائی۔ قاسم سلیمانی کو تیسری برسی پر زبردست خراج۔ تہران اور دوسرے شہروں میں ہزاروں لوگ امٹ پڑے۔ پاکستان بجلی کے بدترین بحران سے دوچار، بازار رات 8 بجے اور شادی خانے 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ سلطان پوری واقعے کی متاثرہ لڑکی کا ریپ نہیں ہوا، پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ انجلی سنگھ کے کچھ دیر پہلے سہیلی سے جھگڑے کا ویڈیو سامنے آ گیا۔ بھارت جوڑو یاترا اتر پردیش میں داخل، رام مندر کے پجاری نے راہل سے کیا نیک تمناؤں کا اظہار۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل کے کٹر سیکیورٹی منسٹر اتمار بن گویر مسجد اقصی کے کمپاؤنڈ میں پہنچے، جس سے تناؤ میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ فلسطینیوں نے اس حرکت کو چھیڑخانی قرار دیا۔ اسرائیلی وزیر نے کہا کہ ہماری حکومت حماس کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی اور جھکے گی نہیں۔ فلسطینی تنظیموں نے اس سے پہلے وارننگ دی تھی کہ ایسا قدم ریڈ لائن ہوگا۔ بن گویر لمبے عرصے سے اس مقدس مقام پر یہودیوں کے حق کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ بن گویر نے اپنے دورے کے بعد ٹویٹ کیا کہ اگر حماس سمجھتی ہے کہ وہ مجھے ڈرا سکتی ہے، روک سکتی ہے، تو وہ غلطی پر ہے۔ اسے سمجھنا چاہیے کہ وقت بدل گیا ہے۔ وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے ایک مددگار نے ایک ویڈیو جاری کرتے ہوئے کہا کہ وزیر کے دورے کے بعد صورتحال قابو میں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دورہ ایک سوچا سمجھا قدم ہے جس کا مقصد تناؤ بڑھانا ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے مسجد اقصی کی اس بے حرمتی کی مذمت کی اور کہا کہ یہ غیر معمولی چھیڑخانی ہے اور خطرناک صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ اسرائیل کے اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعظم یار لاپڈ نے وارننگ دی کہ بن گویر کے دورے سے خون خرابہ ہو سکتا ہے۔ جان بوجھ کر چھیڑخانی کرتے ہوئے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالی گئی ہیں۔ بن گویر نے پچھلے ہفتے ہی نتنیاہو کی کٹر حکومت میں عہدہ سنبھالا تھا۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم ایریل شیرون نے 2000 میں مسجد اقصی کا دورہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں دوسرا انتفاضہ شروع ہوا تھا۔ بن گویر فلسطینیوں کے تعلق سے انتہائی سخت خیالات رکھتے ہیں۔ نتنیاہو فی الحال اسرائیلی تاریخ کی سب سے کٹر یہودی حکومت کی قیادت کر رہے ہیں۔ بن گویر نے اس سے پہلے بھی کئی چھیڑخانیاں کی ہیں۔ انہوں نے 1994 میں مسجد ابراہیمی میں 29 فلسطینیوں کا قتل عام کرنے والے امریکن اسرائیلی کی واہواہی کی تھی۔ پچھلے سال نومبر میں اسرائیلی صدر آئزیک ہرزوگ نے ایک آڈیو میں وارننگ دی تھی کہ بن گویر کے کٹر خیالات سے پوری دنیا فکر مند ہے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ بن گویر کا یہ دورہ صہیونی قبضے کی ایک مثال ہے۔ اقصی ہمیشہ فلسطینیوں، عربوں اور مسلمانوں کی تھی اور رہے گی۔ کوئی بھی فاشسٹ طاقت یہ حقیقت نہیں بدل سکتی۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف کانو نے ایک بیان میں کہا کہ مسجد اقصی کی بے حرمتی سے صورتحال بھڑک سکتی ہے اور اس کے لیے اسرائیلی حکومت ذمہ دار ہوگی۔ اسلامی جہاد کے ترجمان طارق سلیمی نے کہا کہ تنظیم پوری طرح سے تیار ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم محمد شفیع نے اس دورے کو مسجد اقصی کو یہودی عبادت خانے میں بدلنے کی کوششوں کا حصہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اقصی میں اس طرح کے دعووں کا فلسطینی مقابلہ کریں گے۔
जॉर्डन ने भी इस दौरे की मजम्मत की और कहा कि इससे मुक़द्दस मकामात की बेहरमती हुई है और इससे आलमी कानून और बैतुल मुक़द्दस के तारीख़ी और कानूनी स्टेटस की खिलाफ वर्जी हुई है। इसराइली फ़ौज ने इस दौरान मगरबी किनारे में अलग अलग मकामात पर धावे करते हुए 4 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार किया। फ़लस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने ये बात बताई। मुस्लिम मुल्कों की तंजीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ OIC ने इसराइल के कट्टर वज़ीर की मस्जिद अक्सा कंपाउंड में बेहुरमती की मजम्मत की है। OIC ने सख्त लफ्ज़ों पर मुश्तमिल एक बयान जारी करते हुए इतमार बिन ग्वेर के दौरे की तारीख़ी और कानूनी पोजीशन को बदलने की इस हरकत की मजम्मत की। OIC ने कहा कि ये छेड़खानी है और इससे तमाम मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। OIC ने यह भी कहा कि यह दौरा आलमी करारदादों की खिलाफ वर्जी है। इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे में एक फ़लस्तीनी नौजवान को गोली मार कर हलाक कर दिया। फ़लस्तीन के वज़ारत सेहत के अहदेदारों ने यह बात बताई कि वाक़या बैतुल-लहम के करीब पेश आया जब इसराइली फ़ौज बाज़ फ़लस्तीनियों की गिरफ्तारी के लिए रेफ्यूजी कैंप पहुंची। यूक्रेन की फ़ौज ने डोनेट्स्क इलाके में रॉकेटों से हमले किए जहां रशियन सिपाही ठहरे हुए थे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस हमले में 63 रशियन सिपाही हलाक हुए हैं। ये जंग शुरू होने के बाद से रशिया की फ़ौज पर सबसे ख़तरनाक हमलों में से एक है। यूक्रेन की फ़ौज ने हिमास रॉकेट सिस्टम से 6 रॉकेट फायर किए। रशिया की वज़ारत दिफा ने एक बयान में कहा कि 2 रॉकेट्स को मार गिराया गया। ये अमेरिका की तरफ से दिया गया एक ताकतवर वेपन सिस्टम है जो यूक्रेन फ़ौज के लिए काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। यूक्रेन की फ़ौज ने इस हमले की सीधे तौर पर तस्दीक नहीं की है, लेकिन इशारा दिया है कि उसने ये कार्रवाई की है। यूक्रेन की फ़ौज के स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन डायरेक्टरेट ने कहा कि इतवार को मिकवा की एक इमारत में जमा 400 रशियन सिपाहियों को निशाना बनाया गया। इस दावे की आज़ादाना तौर पर तस्दीक नहीं हुई। रशिया के बयान में कहा गया कि मिकवा हादसे में एक हमला किया गया है। ये खबरें कैसे वक्त आई हैं जब रशिया मुसलसल यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को निशाना बना रहा है। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया पर एनर्जी टेररिज्म का इल्ज़ाम लगाया है। रशिया ने पिछले साल 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले शुरू किए थे। यूक्रेन जंग के 314 दिन पूरे हो गए हैं। एक खबर में कहा गया कि यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन के लीडर्स की एक मीटिंग 3 फरवरी को कीव में होगी जिसमें यूक्रेन की फौजी मदद और माली मदद बढ़ाने के बारे में गौर किया जाएगा। सदर ज़ेलेंस्की के एक मददगार ने यह बात बताई। नाटो चीफ जेंस स्टॉल्टनबर्ग ने कहा कि नाटो मुल्क यूक्रेन की फौजी मदद और दूसरे मामलात पर गौर के लिए एक मीटिंग करेंगे। इस दौरान यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रशिया जंग को लंबा करना चाहता है और नए ड्रोन हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा है। ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी की तीसरी बरसी पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। तेहरान और दूसरे शहरों में हज़ारों लोग सड़कों पर उमड़ आए। किरमान शहर जो कासिम सुलेमानी का आबाई शहर है वहाँ पर एक ज़बरदस्त रैली निकाली गई। इस्फ़हान, यज़्द, अराक और दूसरे शहरों से भी ऐसी ही रैलियों की खबरें मिली हैं। कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी 2020 को अमेरिका के एक ड्रोन हमले में हलाक किया गया था। यह हमला बगदाद एयरपोर्ट के करीब किया गया था जिसमें हाशिद शाबी के कमांडर अबू मेहदी अल मुहंदिस भी हलाक हुए थे। इस वाक़े के बाद ईरान और अमेरिका में ज़बरदस्त तनाव पैदा हो गया था और ईरान ने इसके जवाब में इराक में अमेरिकी फ़ौज के ठिकानों और अड्डों पर हमले किए थे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि आलमी अदालत में अमेरिका को कासिम सुलेमानी के कत्ल के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। कासिम सुलेमानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की कुद्स फोर्स के कमांडर थे। कुद्स फोर्स बैरूनी मुल्कों में ईरान के फौजी ऑपरेशंस की जिम्मेदार है। इराक और सीरिया में आईसिस या दाइश की शिकस्त में कासिम सुलेमानी और कुद्स फोर्स का अहम किरदार रहा है। सदर इब्राहिम रईसी ने तेहरान में कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर एक जलसे से खिताब किया और उनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। ईरान के अहदेदार ने कहा कि कासिम सुलेमानी की शहादत से मुताल्लिक़ केस में 94 मुल्ज़मीन अमरीकी शहरी हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान एक हकीकत हैं और पाकिस्तान के तालिबान फितना हैं। वो सिंध सूबे के दादू शहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। बिलावल ने कहा कि पूरी दुनिया मिलकर अफ़गानिस्तान में जो काम नहीं कर सकती थी वो काम हमने कर दिखाया है। और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के वज़ीरिस्तान, स्वात और कराची में दहशत गर्दों का सफाया कर चुके हैं।
बिजली के बहरान से दो चार पाकिस्तान में हुकूमत ने फैसला किया है कि रात 8 बजे तमाम बाजार बंद कर दिए जाएंगे और शादी खाने रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। हुकूमत ने बिजली की बचत के लिए यह फैसला किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने उम्मीद जाहिर की है कि शादी खाने, रेस्टोरेंट्स और मार्केट जल्द बंद होने से 62 बिलियन रुपए की बिजली बचेगी। पाकिस्तान बिजली के बहरान से दो चार है। कैबिनेट की मीटिंग के दौरान अलामती तौर पर लाइट नहीं जलाई गई। वज़ीर दिफा ने कहा कि हमने पहले भी मुश्किल फैसले किए हैं। बिजली के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया गया है। साउथ कोरिया की वजारत दिफा ने कहा है कि उसने स्पेस रॉकेट का एक कामयाब तजुर्बा किया है। यह मुल्क के खलाई प्रोग्राम का एक अहम वाकया है। नेशनल फुटबॉल लीग के एक स्टार खिलाड़ी विमार हैमलिन को दिल का दौरा पड़ा है और कार्डियक अरेस्ट के बाद उनकी हालत नाजुक है। वो पीर की रात सिंसिनाटी बेंगल के खिलाफ एक मैच के दौरान गिर पड़े। हैमलिन के दिल की धड़कन बाद में बहाल की गई और उन्हें सिंसिनाटी के हॉस्पिटल में शरीक किया गया। नेशनल फुटबॉल लीग ने इस मैच को मुलतवी कर दिया है और कहा है कि मुनासिब वक्त पर अगले कदम का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली में जिस औरत को टक्कर देने के बाद कई किलोमीटर तक घसीटा गया, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस औरत का रेप नहीं हुआ है और उसके जिस्म के प्राइवेट पार्ट्स पर जख्म के कोई निशान नहीं पाए गए हैं। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स के एक बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया और उसकी रिपोर्ट तैयार की। पुलिस को यह रिपोर्ट हवाले कर दी गई है। इस लड़की की पहचान अंजलि सिंह की हैसियत से की गई है। उसकी मां ने शुबा जाहिर किया था कि ये महज टक्कर का मामला नहीं है बल्कि उसका रेप किया गया है। इस वाक़े पर मुल्क भर में गुस्सा पाया जाता है। इस दौरान एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि इस लड़की की वाक़े से पहले एक अपनी सहेली के साथ लड़ाई हुई। अंजलि सिंह इस वीडियो में अपनी सहेली निधि से झगड़ा कर रही है। ये वीडियो रोहिणी इलाके के एक होटल के बाहर का है। इन दोनों ने वहां नए साल की एक पार्टी में हिस्सा लिया था। उन्होंने एक दूसरे पर खूब गुस्सा उतारा और उनकी चीख पुकार सुनकर होटल स्टाफ ने उनसे कहा कि वो बाहर निकल जाए। ओयो होटल के एक मुलाजिम ने कहा कि वो ज़ोर ज़ोर से एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। इसके बाद मैनेजमेंट ने उनसे कहा कि वो बाहर चले जाएं। बाद में वो स्कूटी पर रवाना हो गए। दूसरे वीडियोस में अंजलि को रवाना होते हुए देखा जा सकता है। गाड़ी निधि चला रही थी। कुछ देर बाद दोनों ने अपनी जगह बदली। सुबह तकरीबन 3 बजे 5 लोगों के साथ जाने वाली एक कार ने अंजलि को टक्कर दे दी। पुलिस के मुताबिक उसका पैर कार में फंस गया और उसे घसीटते हुए 13 किलोमीटर तक ले जाया गया। निधि इस वाक़े में मामूली जख्मी हुई और मकाम से फरार हो गई। गाड़ी में सवार 5 लोग नशे में धुत थे। कई लोगों ने अंजलि को घसीटने का मंजर देखा। कई चश्मदीद गवाहों ने कहा कि यह हादसा नहीं हो सकता। पुलिस ने कहा है कि वो निधि का बयान रिकॉर्ड करेगी। निधि का बयान तहकीकाती अहदेदारों के लिए काफ़ी अहम होगा। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस शालिनी सिंह ने, जिन्हें इस वाक़े की तहकीकात की जिम्मेदारी दी गई है, मकाम का दौरा किया और सीन को रिक्रिएट किया। मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने इस वाक़े के बारे में दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हो गई है। गाजियाबाद के रास्ते से यात्रा उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई। पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने लोनी के मकाम पर यात्रा का इस्तकबाल किया। इस मौके पर उन्होंने राहुल गांधी को एक जुर्रतमंद शख्स करार दिया और कहा कि उनकी इमेज को बिगाड़ने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की गई। राहुल गांधी ने इससे पहले दिल्ली के यमुना बाजार में हनुमान मंदिर का दौरा किया और रिवायती गदा हाथ में लिया। इसके बाद वो यूपी के लिए रवाना हो गए। यात्रा में 9 दिन का वक्फा दिया गया था। इस दौरान हैरान करने वाले एक वाक़े में राम जन्मभूमि मंदिर के सदर पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राहुल गांधी को एक खत लिखा और भारत जोड़ो यात्रा के मकसदों की तारीफ की और उनकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इसराइल का कट्टर वजीर मस्जिद अक्सा कंपाउंड में आधम का, कहा धमकियों से नहीं डरता, तनाव में कई गुना इजाफा। फलस्तीनियों ने इतमार बिन गुएर के अक्सा दौरे को छेड़खानी करार दिया। हमास ने कहा नतीजों के लिए इस्राएली हुकूमत जिम्मेदार होगी।
وزیر اعظم محمد شفیع نے فلسطینیوں سے کہا اقصی دھاووں کا مقابلہ کریں۔ OIC نے بھی کی بن غویر کے دورے کی مذمت۔ ڈونیٹسک میں یوکرین کا ہیمارس راکٹ سسٹم سے حملہ، 63 رشین سپاہی ہلاک، جنگ شروع ہونے کے بعد کی سب سے بڑی کارروائی۔ قاسم سلیمانی کو تیسری برسی پر زبردست خراج، تہران اور دوسرے شہروں میں ہزاروں لوگ امٹ پڑے۔ پاکستان بجلی کے بدترین بحران سے دوچار، بازار رات 8 بجے اور شادی خانے 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ سلطان پوری واقعے کی متاثرہ لڑکی کا ریپ نہیں ہوا، پوسٹ مارٹم رپورٹ۔ انجلی سنگھ کے کچھ دیر پہلے سہیلی سے جھگڑے کا ویڈیو سامنے آ گیا۔ بھارت جوڑو یاترا اتر پردیش میں داخل، رام مندر کے پجاری نے راہل سے کیا نیک تمناؤں کا اظہار۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع الافراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔